S- Hello students, in this video I will discuss the paper of 2019-20 Odisha NTSC physics paper. I have also discussed previous year question paper. You can see in the playlist. Today I will discuss 2019 paper one by one so that you can make an idea about which type question can be asked in 2020-21 paper. Here you can see students, a train starts from rest and moves with uniform acceleration. It attains a velocity of 72 km per hour in 6 minutes. What is acceleration of the train? It's a very easy question. Initial velocity is given at rest, means car is starting at rest, and final velocity is given v is equals to 72 km per hour. Here you can see 72 km per hour, but answer here it's given in meter per second square. You have to find answer in meter per second square. Multiply 5 by 18. 5 by 18 to convert meter per second, it will become 20 meter per second students. It will become 20 meter per second. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है. तो v का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? v का वैल्यू 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम कितना दिया है? टाइम है 6 मिनट, यानी हमें सेकंड में लेना पड़ेगा इसको. 6 इंटू 6, इट विल बिकम 0 to 0 और 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द राइट आंसर. here should be a square, it's mistakenly it's written -1. Answer should be, this is the right option. C option is the right option. Next question is given students, what is the value of minimum resistance which can be made by connecting 4 resistor each of 1/4. तो 4 रेजिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर आप चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा. Then here you can write R equivalent is equals to R/4. R/4, because if you will connect 4 resistance of 1/4 ohm, R is equals to 1/4 ohm. It's given in the question. And if you will connect 4 resistance in parallel, then R equivalent will become R/4. Means 1/4 divided by 4, it will become 1/16 ohm. 1/16 ohm will be the minimum answer. Means this is the right answer, D option. Next question is given, a person speaking with a loud voice starts to talk softly. Which character of the sound wave did the person reduce? Amplitude students. Loudness is the एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज़्यादा लाउड अगर आप बोलोगे उतना ज़्यादा, अगर एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा लाउड होगा. जैसे आप किसी ड्रम को हीट करते हो, स्लोली हीट करोगे तो मेम्ब्रेन जो होगा उसका मेम्ब्रेन का एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन ज़ोर ज़ोर से आप हीट करोगे तो मेम्ब्रेन ज़्यादा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, मीन्स ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा. तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर कनकेव मिरर ओनली, प्लेन मिरर ओनली, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन. डी ऑप्शन होगा, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है चाहे वो किसी तरह का भी सरफेस हो, फॉर एनी टाइप ऑफ सरफेस. चाहे वो कनकेव मिरर हो या प्लेन मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उस पर डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट्स. और एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन. इट्स ऑल्सो सबके लिए वैलिड है. दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर एवरी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a person cannot see the distinctly object kept beyond the 4 meter. For corresponding this defect of vision, he need to lens of the power. तो 4 मीटर के बियॉन्ड नहीं देख सकता स्टूडेंट्स. मीन्स इस फार पॉइंट इज 4 मीटर. सपोज दिस इज ए ह्यूमन आई, दिस इज ए ह्यूमन आई. I will make a human eye. Suppose, wait a minute. Suppose this is lens, different color. This is lens and 4 meter is the largest distance.
means he can't see infinity. If ray coming from infinity, that person cannot see that object. Means if ray will go from this point, can see that one. It will converge at retina. It will converge at retina. Then ray coming from infinity will converge before that. Then what can we do, students? We can put here diverging lens. यहाँ पर एक मिनट, पैरेलल नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, पैरेलल ऐसे बना देता हूँ। तो यहाँ पर अगर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दे स्टूडेंट्स ऐसे, तो क्या होगा, ये रे को डाइवर्ज कर देगा ऐसे, ये वाइट रे को ऐसे डाइवर्ज कर देगा इस डायरेक्शन में। तो ये इस ह्यूमन आइज को लगेगा कि रे जो है इस पॉइंट से जा रहा है, जो उसका फार पॉइंट है, मतलब ये 4 मीटर जो डिस्टेंस वहाँ से जाता हुआ अपीयर होगा, तो उसका इमेज रेटिना पर बन जाएगा। तो ये इन्फिनिटी था, लेंस ने उसका इमेज कहाँ बना दिया, लेंस ने उसका इमेज 4 मीटर पर बना दिया। अब 4 मीटर से जाएगा तो ये देख सकता है। तो लेंस का हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो यू इस लेंस के लिए यू का वैल्यू कितना होगा, -इन्फिनिटी, और वी कहाँ पर होगा, -4 मीटर, -4 मीटर, ठीक है। और एफ़ का वैल्यू हमें निकालना है। तो एफ़ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f फ्रॉम लेंस फार्मूला, एंड दिस वन बिकम 0 स्टूडेंट्स, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी बिकम 0, सॉरी 1/u विल बी 0, 1/u विल बिकम 0। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f, और 1/f इज इक्वल टू पावर स्टूडेंट्स। इफ वी विल टेक v in meter, then power is equals to 1/-4 meter. Now answer will come -0.25 diopter, -0.25. Power will be -0.25 diopter. This is the right answer, students. Next question है, a 2 centimeter long pin is fixed vertically in front of vertically placed concave mirror. A 1 centimeter long image yellow pin is formed at distance 20 centimeter front of the mirror. Then the focal length of concave mirror is. तो यहाँ पर एक concave mirror है स्टूडेंट्स, concave mirror है। तो कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कितना डिस्टेंस पर, फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर, लॉन्ग इमेज इज फॉर्म। तो यहाँ पर कहीं रखा गया, मान लो कि यहाँ पर एक पिन रखा गया है, उसका इमेज 30 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो रहा है, मान लो, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो रहा है। तो यू हमें नोन नहीं है, लेकिन इसका हाइट 2 सेंटीमीटर दिया, इसका हाइट 1 सेंटीमीटर दिया, मैग्नीफिकेशन गिवन है। तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा स्टूडेंट्स, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो माइनस, और ये बोला है कि वन फोकल डिस्टेंस इतना इन फ्रंट ऑफ मिरर दिस, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर इमेज बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड ही हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनेगा तभी वर्चुअल होगा। तो फ्रंट में बन रहा तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इमेज भी इन्वर्टेड होगा, तो -1/2 -½ हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीफिकेशन हाफ हो गया। और हम लोग जानते हैं ये फार्मूला जो होता है -v/u के इक्वल होता है। तो इससे हमें रिलेशन आ जाएगा कि u इज इक्वल टू 2 टाइम्स v हो जाएगा, 2 टाइम्स v। अब यहाँ पर हम लोग मिरर फार्मूला लगा सकते हैं 1/v + 1/u। You have to calculate, we have to calculate distance is in front of mirror, and v is given 30 centimeter, v is -30 centimeter, v is -30 centimeter because it's left side of the origin, then u is equal become -60 centimeter. Now we can put here directly 1/v + 1/u is equals to 1/f. Here it will become 1/v value is -30 or u value is 1/-60,
is equals to 1 by f. You can take LCM. 60 divided by minus 2 minus 1 is equals to 1 by f minus 3 minus 1 by 2. F is equals to minus 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स minus 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स. दिस वन इज द राइट आंसर. ठीक है, इसको बिना देखे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए इजी क्वेश्चन है ये. अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि फ्रॉम द अर्थ सरफेस ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द मोशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एक्ट ऑन द स्टोन. व्हाट विल बी द हाइट एटेन्ड बाय. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स. यहाँ पर अगर देखें तो ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक ही प्रॉब्लम है था. जैसे यहाँ पर एक बॉल है, इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया. कितना वेलोसिटी से. इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन जी का वैल्यू यहाँ डाउनवर्ड है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है. तो अगर आप अपवर्ड पॉजिटिव मानोगे, मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूँ, ऊपर के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लेता हूँ तो यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो लिखोगे वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया एच मैक्स, उसको कैप एच मान लेता हूँ. तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा. मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. अगर फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया मैक्सिमम हाइट पर. इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस इसलिए क्योंकि -10 है तो -2gh हो जाएगा. तो -2g का वैल्यू 10 -10 पुट कर दिया इंटू h. तो यहाँ से h मैक्स वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो h इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाई 2g 2 इंटू 10. तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 0.8 मीटर आ गया स्टूडेंट्स. 0.8 मीटर. ये आप फार्मूला भी जानते हो, h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g. ये फार्मूला भी होता है तो डायरेक्ट ये भी अप्लाई कर सकते हो. सेम ही चीज़ है, यू स्क्वायर बाई 2g. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर टेकन. दे आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज with a battery in a circuit A, and next they are connected parallel with the same battery in circuit B. What will be the ratio of current through the circuit A in series and the current through the circuit B in parallel. तो अगर किसी सेम टाइप का मटेरियल भी है, लेंथ इक्वल है तो रेजिस्टेंस इक्वल होगा. डायमीटर भी अगर सेम है तो रेजिस्टेंस इक्वल होगा. मान लेता हूँ कि एक रेजिस्टेंस R हो गया स्टूडेंट्स, तो इसका रेजिस्टेंस R हो गया और सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं. फर्स्ट ए सिचुएशन में सीरीज में कनेक्ट कर दिया V वोल्ट के बैटरी से. मान लो कि V वोल्ट का बैटरी है, कनेक्ट कर दिया. तो इसमें R इक्विवेलेंट तो इतना, करंट कितना हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट. तो इसमें करंट I ये मान ले रहा हूँ सिचुएशन ए के लिए. तो V बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट. आर इक्विवेलेंट सीरीज में रहता है तो ऐड हो जाता है स्टूडेंट्स. तो V बाई 2R हो गया. तो ये IA हो गया. अब सेकेंड सिचुएशन में अगर पैरेलल में ऐड कर देते हैं, दो रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करके सेम वोल्ट के बैटरी से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होता है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है R बाई 2 हो जाएगा. अगर 3 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में तो R बाई 3 हो जाता है. अगर n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो R बाई n. तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा इस सर्किट में, IB मैं बोल दे रहा हूँ इसको. तो IB इज इक्वल टू हो जाएगा I V बाई आर इक्विवेलेंट R बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो V बाई आर हो गया. तो यहाँ पर रेशियो अगर निकालें IA बाई IB का तो कितना हो जाएगा V बाई आर 2R डिवाइडेड बाई 2V बाई आर. तो R ऊपर चला गया डिवाइड बाई 2V.
V से V कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, 1/4, तो 1:4 रेशियो हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये ज़्यादा इजी प्रॉब्लम था। प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत इजी था स्टूडेंट्स, और सर के कंपैरिजन में, तो आप देख सकते हैं एक साथ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे वीडियो को। यू कैन टेक a screenshot.